السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد ماشاءاللہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام اور اسٹیج پر زینت افروز ماہران اردو اور معزز پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہماری اس مجلس کو اور اس محفل کو اور اس پروگرام کو قبول فرمائے، آمین۔ اصل جو ہمارے جڑنے کا مقصد یہ ہے، مدرسہ محمدیہ کے افتتاح کے نام سے ہم کو جوڑا گیا ہے، اور عورتوں کے تعلق سے کہ آج کے زمانے میں مستورات کے اندر اور ماں بہنوں کے اندر دینی تعلیم کا ہونا کتنا ضروری اور اہم ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آج مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر دینداری ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، سورۃ النساء کی صفحہ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل قصہ اور مکمل آیت کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ دنیا میں مردوں کے بالمقابل عورتیں 4 گنا زیادہ ہیں۔ اگر مرد حضرات کے اندر دینداری آئے گی اور اسلامی طریقہ آئے گا تو صرف فرد کی حیثیت سے آئے گا، اور اگر عورت کے اندر آئے گا تو ایک خاندان، مکمل خاندان کے اندر دینداری اور اسلامی طریقہ آنا ہوا ہے۔ تاریخ گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں عورتوں کے مردوں کے بالمقابل عورتیں 4 گنا زیادہ ہیں۔ اس کی مثال سے وضاحت کر دی ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بات اسی وقت صحیح ہوگی اور یہ قرآن کریم کی آیت اسی وقت صحیح ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مرد حضرات کے بالمقابل 4 گنا عورتوں کو زیادہ پیدا کیا ہو، اسی وقت یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ اور آج کے اس پرفتن ماحول میں آج کے اخبارات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے مستورات کے اندر اور ماں بہنوں کے اندر دینی تعلیم کی کمی ہے۔ اس کمی کو دور کرنا چاہیے اور دینی تعلیم سے وابستگی زندگی کا ایک اہم ضرورت سمجھنا چاہیے، اور اس طرح جو آج یہاں پر محمدیہ کے نام سے جو نسوان قائم ہوا ہے، اس طرح کے نسوان شہر شہر، بستی بستی، قریے قریوں میں قائم کرنا چاہیے، اور جو گاؤں کے اہل قریہ ہیں، اہل گاؤں والے ہیں،
इन लोगों को चाहिए कि मदरसे का भरपूर ताउन करे और अपनी बच्चियों को और माँ बहनों को वहाँ पर भेजकर दीनी तालीम पढ़ाने की मुकम्मल फिक्र और कोशिश करें। इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा शरीयत मुतहरा कहती है कि इल्म जितना हलाल है हराम है इतना जानना हर मुसलमान के ऊपर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है हलाल और हराम का जानना। और इस तरह अगर हमारे औरतों के अंदर दीनदारी दाखिल होगी तो दुनिया के चार दांगे आलम में दीन की खूब इशाअत होगी, दीन खूब फैलेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस आयत के नाजिल होने के वक्त इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, हमको ये बात समझ में आ रही है कि हम जहन्नम के आग से बचना, लेकिन घर वालों को, रिश्तेदारों को, अहले मोहल्ला को किस तरह जहन्नम की आग से बचाएं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन कामों के करने का तुमको हुक्म दिया गया है उन कामों के करने की उनको भी तरगीब दिया करो, और जिन कामों के करने से तुमको मना किया गया है उन कामों के करने से उनको भी मना कर दो, उन कामों से उनको भी मना कर दो। और ये खुद को भी जहन्नम की आग से बचाना हुआ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाना हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम सब के सब निगहबान हो, तुम सब के सब जिम्मेदार हो अपने मातहत लोगों के लिए। अगर वो कल क़यामत के दिन उसके बारे में भी पूछताछ होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे नीचे और सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब कल क़यामत के दिन उस आदमी को होगा कि जिसके मातहत में लोग रहे हों और उनकी सही और अच्छी तरबियत ना की हो। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी औलाद की अच्छी खासी तरबियत करें और अपनी बच्चियों की भी खूब तरबियत करें। आजकल पहले ज़माने में ये बताया जा रहा था कि माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब है, पहला मदरसा है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ का गोद सबसे पहला मकतब और मदरसा कहा जाता है। लेकिन आज ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि आज ना हमारे मर्द हजरात के अंदर दीनदारी है, ना ख़वातीन और मस्तूरात के अंदर दीनदारी है। पहले ज़माने में जब माएँ दूध पिलाती थी तो बावजू होकर दूध पिलाया करती थी, लेकिन आज जब दूध पिलाती है तो हाथ में मोबाइल रखकर गंदी ऐसी वैसी हराम और नाजायज फिल्में देखकर दूध पिला रही है। तो मेरे भाइयों, जो ग़िज़ा बच्चे के पेट में जा रही और सबसे पहले ग़िज़ा जो जा रही है वो इस तरीके पर जा रही है, तो हमारे नस्लों में इमाम अबू हनीफा कहाँ पैदा होंगे, इमाम मालिक कहाँ पैदा होंगे, इमाम शाफी कहाँ पैदा होंगे, दीन की हिफाजत करने वाले और इस्लाम की इशाअत करने वाले कहाँ पैदा होंगे। और ये तमाम इसका वबाल सारे का सारे मर्द हजरात के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कि वो जहाँ सख्ती करना है वहाँ सख्ती नहीं कर रहे हैं, जहाँ नरमी करना है वहाँ नरमी नहीं कर रहे हैं। सबका सब वबाल और सख्त जब क़यामत में पूछताछ होगी तो मर्द हजरात को खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए कि पूरा घर और पूरा ख़ानदान उनके कंट्रोल में होता है। अगर वो सही रुख पर लेकर आए, दीन इस्लाम के रुख पर लेकर आए, कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक घर को बसाना चाहे तो बआसानी बचा सकते हैं। लेकिन गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से ये सब कुछ हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है और ख़राब हो रहा है। शायर कहता है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना।
ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर क्या है? नारे तकबीर भी फितना, नारे तकबीर भी फितना। ये सब क्यों हो रहा है? साफ कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारी माल भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी फितना है। ये क्यों फरमाया? जो औलाद और जो माल अल्लाह के रास्ते में और दीन के मुताबिक खर्च करने से रुकावट बने तो वो माल भी फितना है, और जो बीवी और जो बच्चे अल्लाह के रास्ते में जाने से और दीन की खिदमत करने से जो रुकावट बढ़े तो वो बीवी भी और औलाद भी फितना है। इसलिए जहाँ तक हो सके, मैं बात को मुख्तसर करते हुए बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, जहाँ तक हो सके इस मदरसे के मुताल्लिक़ दुआ करें कि अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और जहाँ तक हो सके शहर वाले और अहले मणिपाड़ इस मदरसे की और इस निस्वान के खूब ताउन करें और अपने नौजवान बच्चियों को और छोटी बच्चियों को लाकर दीन तालीम हासिल करने का एक मुअस्सिर ज़रिया खुला हुआ है, वहाँ पर तालीम की अहमियत दिलाएं और रोज़ाना जो वक्त मुकर्रर किया गया है उस वक्त में भेजने की कोशिश करें, और ख़ुद भी जो बड़े हैं वो भी आकर दीन सीखे। इसलिए कि जो दीन का सीखना है इसके मुताल्लिक़ अहादीस में आया है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, के इल्म की तलब करो, इल्म की सीखो, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक। ये उम्र का बढ़ जाना और उम्र का दरमियान में पहुंच जाना ये इल्म के सीखने को नहीं रोकता है, ये बात हमारे जहनों में बैठी हुई है। इसलिए आप तमाम हजरात इल्म सीखें और अपने बच्चों की सही तरबियत करें और अपनी बच्चियों को मदरसों को भेजकर और सख्त से सख्त कड़ी नज़र रखकर इल्म दीन को सिखाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत के बयान से मुझे कई वाक़यात याद आए, उसमें से एक मशहूर वाक़या याद आया। हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक जंग से वापस हो रहे थे। कनीज़ ने आकर उनकी वालदा को बताया कि टीपू जो है जंग हार कर आ रहे हैं। उनकी वालदा ने फरमाया नहीं हो सकता, मेरा लख्ते जिगर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जंग हार कर नहीं आ सकता है। थोड़ी देर के बाद करीब आने पर काफ़िला मालूम हुआ कि वो फतहयाब होकर आए हैं। फिर कनीज़ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास, वालदा के पास पहुंची और पूछा कि आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती थी कि हज़रत टीपू जो है जंग हार कर नहीं आए, फतेहाब होकर आए। तो हज़रत फ़ातिमा उनका नाम था, उनका नाम भी हज़रत फ़ातिमा था। उन्होंने फरमाया कि मैंने टीपू को कभी भी बेवजू दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह। ऐसे वाक़यात, इससे वाक़यात से बुज़ुर्गान दीन पैदा होते हैं। सही कहा मौलाना ने कि बच्चे का जो पहला मदरसा है वो माँ की गोद है, यकीनन गोद है। हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि मरीपाड़ की तमाम माएँ इंशाअल्लाह आगे से दरूद शरीफ पढ़ते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए अपने बच्चों की तरबियत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कि वो जो टीपू सुल्तान की माँ थी, उनके ननियाल जो है टीपू सुल्तान का गुरुमकुंडा है, फ़खरुन्निसा उनका नाम है, लेकिन वो नवाब जो है गुरुमकुंडे के मीर रज़ा अली खां बहादुर मरीपाड़ की दूध बौड़ी से पानी मंगाकर पीते थे। ये रेड्डी बौड़ी का पानी वहाँ पर पिया करते थे। तो ये सरजमीन को वो शरफ हासिल है कि यहाँ का जो पानी पीने वाले लोगों में वो जज्बा मौजूद था, उसी लिए यहाँ पर ये मोहम्मदिया निस्वान कायम हुआ है।